Singh and I welcome you all in this portal of online classes on the behalf of Wisdom Coaching Center and Sante Degree College. In our previous lecture, we have discussed about the syllabus, about the paper pattern. If you haven't watched that video, then go through the playlist and watch that video right now, because in that video I have discussed about how the marks are divided of physics subject and how we are going to study, what is our strategy. Moving further, some fundamental points you must know. So I am going to discuss those basic points, those key points which are going to be very useful during this syllabus. The first one is potential or electric potential. Here is the definition. Electric potential. It is defined as the work done in carrying a test charge, that is unit positive charge, from infinite to a specific point inside the electric field. We have studied this definition in our intermediate also. I am just memorizing those things. It is defined as work done. What is electric potential? It is work done in carrying a test charge. What is test charge? Test charge is nothing but a unit positive charge. A unit positive charge is also known as a test charge. And we have to carry that charge from infinite to a specific point inside the electric field. Now the question arises, what is infinite? How can we define the infinite? So, since infinite is not a quantity, we cannot determine it. If we keep our charge here, something at some place on earth, and we move to moon, then this is also not infinite, because we know the distance of moon and earth. We know the distance of sun and earth. Also, wherever we will go, we will determine the distance, how much we have covered. Then what is infinite? And how will we reach infinite and carry that unit positive charge, that is test charge, from infinite to some certain point within this electric field? Infinite is nothing but a point that lies outside this electric field. We can refer this point as infinite, we can refer this point as infinite, we can refer this point, any point which lies outside this electric field, we can refer it to infinite. As I promised you, I am going to explain the things in Hindi as well. So let us see these things in Hindi. Electric potential. In Hindi we say electric potential as Vaidut Vibhav. Now let's see the definition. It is defined as the work done in carrying a unit positive charge from infinite to a specific point inside the electric field. एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है. इसको जरा समझते हैं. मैंने अभी बताया कि इनफाइनाइट हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट तो कोई डिस्टेंस ऐसी है नहीं. इनफाइनाइट हम यहाँ से चंद्रमा पर चले जाएंगे, वो भी डिस्टेंस फाइनाइट होगी. हम यहाँ से सूर्य पर चले जाएं, वो भी डिस्टेंस फाइनाइट होगी. तो हम जहां जहां भी जाएंगे वहां की हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं. तो इनफाइनाइट कैसे होगी? तो इनफाइनाइट का यहाँ पर मतलब सिर्फ इतना है कि इस चार्ज के चारों ओर वह क्षेत्र, एक फील्ड होती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट होगा उसे हम इनफाइनाइट रेफर कर सकते हैं. जैसे हम लोग जानते हैं कि जब दो चार्जेस को हम पास मिलाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे पर एक फोर्स लगाएंगे. अगर सेम पोलैरिटी की होंगे, सेम पोलैरिटी का मतलब अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा, दोनों एक दूसरे को दूर भगाएंगे. और अगर अपोजिट पोलैरिटी के हैं, यानी एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा. इतनी बात समझ में आई? तो अब ऐसा तो नहीं है कि एक चार्ज हम रख दें प्रयागराज में, एक चार्ज हम रख दें दिल्ली में, तो दोनों के बीच कोई ना कोई फोर्स लगेगा. ऐसा होगा? नहीं होगा. अगर दो छोटे चार्ज हैं, एक आप प्रयागराज में रखिए, एक दिल्ली में रख दीजिए, कोई उसमें इंटरेक्शन नहीं होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा. एक चार्ज आप रख दीजिए कहीं पर भी, दूसरा चार्ज उससे 10 किलोमीटर दूर, छोटे छोटे चार्जेस हैं, तो तब भी कोई इंटरेक्शन नहीं होगा. तो यानी हमारे पास एक ऐसी फील्ड होती है, जब दो चार्जेस को हम पास लाते हैं तो एक हमको ऐसी डिस्टेंस मिलती है, ये वाली. इस डिस्टेंस के अंदर अगर हम आएंगे तभी उस पर फोर्स अप्लाई होगा. तो किसी भी चार्ज के चारों ओर एक एरिया होता है, स्फेरिकल एरिया होता है, एक फील्ड होता है, जिसमें ही वह चार्ज
दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा उसे ही हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया बोलते हैं। और जब इस एरिया में किसी भी हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे तो उसे ही हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने यहाँ पर लिया, इसको नाम दे दिया हमने प्लस पी, या मैं नाम दे दे रहा हूँ इसको यू चार्ज, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको हमने नाम दे दिया यू। जब तक ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है तब तक इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं होगा। इसको हम यहां से लेकर के आएंगे और जैसे ही हम यहां पर पहुंचेंगे इस पॉइंट पर, वैसे ही इन दोनों के बीच एक फोर्स लगने लगेगा। क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। तो इस एक फोर्स लगेगा रिपल्सन का जो इसको दूर करेगा, तो हमको एक्स्ट्रा फोर्स इधर से लगाना पड़ेगा, हमको वर्क करना पड़ेगा ताकि हम इसको और अंदर की ओर लेकर के आए। सपोज हमको इस पॉइंट ए पर इस चार्ज को ला करके रखना है, तो इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा, इस पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क करना पड़ेगा उसे ही हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, अब चलिए यहां समझते हैं। ये तो मैंने चार्ज लिया था प्लस क्यू, अगर सपोज करिए कि माइनस चार्ज होता तो क्या होता, तो फिर से हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिए, ये पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको हमने नाम दे दिया यू अगेन। अब इस चार्ज को हम फिर से कैरी करेंगे, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर रहेंगे तब तक कोई फोर्स इस पे अप्लाई नहीं होगा। जैसे ही हम इस बाउंड्री को क्रॉस करते हैं, इसके अंदर आते हैं, वैसे ही अब इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा। अब बताइए इन दोनों के बीच फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन लगेगा या रिपल्सन लगेगा, आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज है, तो क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, आकर्षित करेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ले जाने में कार्य नहीं करना पड़ रहा है, ले तो अपने आप ये चला जा रहा है, इसको रोकने के लिए कार्य करना पड़ रहा है। इसको अगर सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, तो हमको इसको यहाँ पर रोकने के लिए कार्य करना पड़ेगा। यानी इस बार हमको लाने में कार्य नहीं करना पड़ रहा है, कार्य हमको प्राप्त हो रहा है। तो डिफिनेशन में कहा गया है कि वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज, यानी हमको लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो हमको कार्य मिल रहा है। तो इससे हमको पता चला कि जो हमारा कार्य होगा वो दो तरह का होगा। अगर हम कैरी कर ले जाने वाले कार्य को पॉजिटिव बोल रहे हैं, तो जो कार्य हमको मिलेगा वो कार्य कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क डन होगा ये हमारा पॉजिटिव होगा, और यहाँ पर जो वर्क डन होगा, जो भी हम कार्य करेंगे, ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और इसी चार्ज को कैरी करने में जो वर्क करना पड़ता है, इसे ही तो हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो यहां से पता चला कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी दो तरह का होगा, एक पॉजिटिव पोटेंशियल और एक नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। इतनी बात समझ में आई? अगर अभी इसमें कोई भी डाउट हो इस टॉपिक में, तो तुरंत आप वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में आप मुझसे वो क्वेश्चन जरूर पूछ लीजिएगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव के कारण नेगेटिव पोटेंशियल। हालांकि इस सब्जेक्ट में जो हम पढ़ने चल रहे हैं, इसमें हमको पोटेंशियल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे ही हम बोलते हैं वोल्टेज। तो आइए देखते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है या वोल्टेज क्या है, उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि वोल्टेज क्या है। डेफिनेशन में थोड़ा सा बहुत माइनर सा डिफरेंस है, इसको समझते हैं। It is defined as work done in carrying a test charge from a specific point to another specific point inside the electric field. In the last definition we have seen, we have carried the charge from infinite to a specific point inside the field. But in this definition, we have to move that charge from some specific point to another specific point inside that field. कहने का मतलब कि वोल्टेज बोले या हम पोटेंशियल डिफरेंस बोले, दोनों सेम चीजें हैं। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या है कि इस जो हमारा टेस्ट चार्ज है, एकांक धनावेश है, उसको इस क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को हम बोलेंगे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, उन दोनों बिंदुओं के बीच का वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। देखते हैं
मैंने यहाँ एक पॉइंट ले लिया है बी। अगर हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है ए पर और इसको यहाँ से बी पर लेकर के जाना है, तो ए से बी जाने में जो भी कार्य करना पड़ेगा वो हमारा कहलाएगा ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या ए और बी के बीच का वोल्टेज। और इसको हम ऐसे लिखेंगे वी ए बी, दैट इज वी ए माइनस वी बी। ये वी ए क्या है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका पोटेंशियल। वी बी क्या है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका पोटेंशियल वी बी, जैसे हमने पिछले डिफिनेशन में निकाला था। वी ए जैसे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे ए तक तो जो वर्क करना पड़ेगा वो वी ए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे बी तक तो जो वर्क करना पड़ेगा वी बी, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वोल्टेज का वी ए माइनस वी बी, वही कहलाएगा ए और बी के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। ठीक है। सिमिलरली हियर वी अज्यूम अनदर पॉइंट दैट इज Q and we have to carry our unit positive charge from P to Q. Hence the work done in carrying that charge from P to Q is said to be voltage between these 2 points, and we can denote it as VPQ is equals to VP minus VQ. Got it? बहुत स्लाइड्स का डिफरेंस था पिछले टॉपिक में और इसमें, और इसी की हमको जरूरत पड़ने वाली है। पूरे इस सब्जेक्ट में हमारा वोल्टेज और करंट यही चलने वाला है, तो ये चीज अच्छे से समझ में आनी चाहिए। वोल्टेज क्या है? तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो भी हमको वर्क करना पड़ेगा वही उन दोनों पॉइंट्स के बीच का वोल्टेज कहलाएगा या पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। कोई समस्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। Now let us see another basic fundamental point and which is most important, that is current. We have studied current in our class 12. We are going to memorize these things. The rate of flow of charges is known as current. In Hindi इससे हम बोलते हैं धारा या विद्युत धारा। तो आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम विद्युत धारा बोलेंगे। और विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 2 तरह की करंट पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट करंट, जिसे हम बोलते हैं डीसी, एंड द सेकंड वन इज अल्टरनेटिंग करंट, दैट इज एसी। मैंने ये ग्राफ बनाया इन दोनों का, इनको थोड़ा समझते हैं कि ये है क्या चीज। डीसी किसे बोलेंगे और एसी किसे बोलेंगे। डायरेक्ट करंट क्या है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है। डायरेक्ट करंट या डीसी वो करंट होती है जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी। याद रखिएगा इस पॉइंट को। डायरेक्ट करंट वो करंट है जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी, जबकि अल्टरनेटिंग करंट ऐसी करंट होती है जिसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। अब इसको जरा समझते हैं कि ये है क्या। आप सभी ने 9th में 10th में मैथ्स तो जरूर पढ़ी होगी। अगर आप साइंस साइड के स्टूडेंट हैं 9th 10th में तो मैथ्स जरूर पढ़ेंगे। तो वहां पर एक टॉपिक है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट से हम ये जानते हैं कि इस एक्सिस को बोलते हैं एक्स एक्सिस, इस एक्सिस को बोलते हैं वाई एक्सिस। सिमिलरली यहां पर भी इसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। एक सिंपल बात मैं बता रहा हूं। ये बोलते हैं इसे बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, प्रथम चतुर्थांश। ये सेकंड क्वाड्रेंट, द्वितीय चतुर्थांश। ये तृतीय क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, तृतीय चतुर्थांश, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, चतुर्थ चतुर्थांश। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो इस क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है। एक्स एक्सिस के ऊपर हम जब तक रहेंगे तब तक वाई का मान पॉजिटिव रहेगा। अगर हम इधर भी आते हैं तो एक्स का मान नेगेटिव होगा, लेकिन वाई का मान इधर भी पॉजिटिव रहेगा। तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि इसे एक्स को मैंने बोल दिया टाइम या टी एक्सिस हो गई, और ये जो वाई एक्सिस है इसको हमने बोल दिया करंट। कॉन्सेप्ट वही है, ये हमारी करंट को रिप्रेजेंट करेगी और ये हमारी टाइम को रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, समय के साथ, टाइम के साथ जो आपकी करंट है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है पहली चीज। दूसरी चीज, इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही। पोलैरिटी चेंज होने का मतलब आई का मान पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है, यहाँ पे आई का मान कहीं पर भी निगेटिव नहीं हो रहा है। इसलिए ये कैसी करंट होगी, डीसी करंट होगी। यहां पर समझते हैं, ये भी हमारी टाइम एक्सिस है टी, और ये हमारी करंट आई। यहां पर देखते हैं ये टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, यहां पर करंट की वैल्यू 0 है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है
वैसे वैसे करंट की वैल्यू भी बढ़ रही है। फिर कुछ धीरे धीरे समय बढ़ा तो करंट की वैल्यू कम हुई, फिर से 0 हो गई, और टाइम बढ़ा तो अब इस बार करंट की वैल्यू निगेटिव हो गई। यानी यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव थी और यहाँ पर निगेटिव हो गई। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि ये जो करंट है इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव हो रही है तो कभी निगेटिव हो रही है। यानी इसकी क्या चेंज हो रही है? पोलैरिटी चेंज हो रही है। ऐसी करंट जिसकी पोलैरिटी चेंज होगी उसे हम क्या बोलेंगे? एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट। याद रखिएगा इसको, चाहे आप पॉइंट्स बना के नोट करके लिख लीजिए कि ऐसी करंट जिसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होगी वो होगी डायरेक्ट करंट, और ऐसी करंट जिसकी पोलैरिटी चेंज होगी उसे हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट या एसी। ये एक लाइन में आपको समझ में आ जाएगा कि एसी क्या है, डीसी क्या है। ठीक है, मैं कुछ और ग्राफ बना करके आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा एसी है कौन सा डीसी। मैंने आपके सामने ये 5 फिगर्स ड्रॉ किए हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी करंट डीसी है और कौन सी करंट एसी है। तो पहला काम करिए, आप वीडियो को यहीं पॉज कर दीजिए, ये सारे वेवफॉर्म आप देख लीजिए कैसे बने हुए हैं, और अपनी कॉपी में तुरंत नोट कीजिए कि पहला कौन सा है। आपको ऐसे डालना है पॉइंट 1 एसी और डीसी जो भी है, पॉइंट 2 एसी और डीसी, इसी तरीके से आपको ये डाल देना है। ठीक है, इतना काम जल्दी से करिए। चलिए अब मैं एक्सप्लेन करने चल रहा हूं कि इन चीजों को हम समझते हैं कि ये है क्या चीज। पहले वेवफॉर्म को देखते हैं, कुछ ऐसे बना हुआ है जिगजैग। अब देखिए, ये तो फिगर ऐसे समझ में आ रहा है जैसे हमने अभी एसी का बनाया था। एसी का हमने ऐसे बनाया था ना, ऐसे बनाया था। ये फिगर उसी तरह से दिख रहा है। तो ये क्या होगा? एसी होगा कि डीसी होगा? लग तो रहा है कि एसी होगा। चलिए अब आप अपने आंसर्स को चेक कीजिए जो आपने लिखा हुआ है अपनी कॉपी में। अब मुझे बताइए कि क्या यहां पर करंट की पोलैरिटी चेंज हो रही है? पोलैरिटी चेंज होने का मतलब आई का मान कहीं पर भी यहां पर पॉजिटिव है तो कहीं पर भी निगेटिव हो रहा है। आई का मान देखते हैं, यहां पर आई का मान पॉजिटिव है, यहां पर आई का मान क्या होगा? क्योंकि ये पॉइंट भी टी एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के ऊपर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉइंट भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। आई का मान यहाँ पर भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है। तो ये करंट कैसी होगी? कैसी होगी? डीसी होगी। ये करंट हो गई हमारी डीसी। चलिए इसको देखते हैं। अभी हमने जो बनाया था फिगर एक डीसी का, वो इस तरह से था कुछ, यहाँ पे टी एक्सिस, यहाँ पे आई और ये हमारा। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि करंट आई इधर है, टी इधर है, और ये आई का निगेटिव वैल्यू हमको मिल रही है। तो निगेटिव मिल रही है, पॉजिटिव मिलना चाहिए, इसको एसी होना चाहिए कि डीसी होना चाहिए, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। तो फिर से यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे, पोलैरिटी चेक करेंगे, क्या इसकी पोलैरिटी कहीं पर चेंज हो रही है? ये यहाँ पर निगेटिव है आई का मान, यहाँ भी निगेटिव है, यहाँ भी निगेटिव है, हर पॉइंट पर आई की वैल्यू निगेटिव है, यानी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, केवल निगेटिव है। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? ये भी होगी हमारी डीसी। समझ में आया? हमको बस एक चीज चेक करनी है, पोलैरिटी। अगर पोलैरिटी चेंज हो रही है तो एसी, नहीं चेंज हो रही तो डीसी। यहाँ पर देखते हैं, अब तो समझ गए होंगे आप लोग। यहाँ पर देखते हैं, ये कोई हमारी वेवफॉर्म है, इस तरह से स्क्वायर वेवफॉर्म है, रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म है, अब जो कहना चाहे वो करें। आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है, और जैसे ही हम आगे बढ़े आई की वैल्यू यहाँ पर क्या है? निगेटिव है। ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो ये कैसी करंट होगी? बिल्कुल सही, ये होगी हमारी एसी करंट। क्यों? क्योंकि इसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। चलिए अब समझ गए होंगे आप लोग। इसको देखते हैं, यहां पर भी वही एसी वाला स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो एसी होगी कि डीसी होगी? देखते हैं, हमारे पास एक रूल है जिससे हम चेक करेंगे, वो है पोलैरिटी। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा ग्राफ टी एक्सिस के ऊपर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। हाँ, कुछ पॉइंट ऐसे जरूर हैं, जैसे यहाँ पर जीरो है, जीरो है, जीरो है। तो अब जीरो पर ना तो हम पॉजिटिव बोल सकते हैं ना ही निगेटिव बोल सकते हैं,
तो आपकी मर्जी, जीरो को पॉजिटिव कंसीडर कर लीजिए, जीरो को मन के निगेटिव कंसीडर कर लीजिए। इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसकी पोलैरिटी चेंज नहीं हो रही है, हर जगह ये पॉजिटिव है। तो ये कैसी होगी? डीसी होगी। ये कैसी होगी? करंट डीसी होगी। यहाँ पे चेक करते हैं, ये पॉइंट इधर का पार्ट टी एक्सिस के ऊपर, तो ये हो गया पॉजिटिव, इधर का पार्ट टी एक्सिस के नीचे, तो ये हो गया निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। कैसी क्वांटिटी है ये? एसी। ये कौन सी करंट होगी आपकी? एसी होगी। इतनी बात समझ में आई? तो आपको बस एक चीज चेक करनी है, वो है पोलैरिटी। इस तरह के ग्राफ, हालांकि जल्दी हमको करंट के इस तरह के मिलेंगे नहीं, कुछ ही इनमें से मिलेंगे, लेकिन फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये सब आपको बता दिए हैं कि इस तरह से भी ग्राफ बन सकते हैं। जैसे आपने ये पढ़ा रहा होगा क्लास 12 में रेक्टिफायर में, नहीं पढ़ा था तो अभी फिर से हमको ये मिलेगा। जब हम पढ़ेंगे रेक्टिफायर्स तो वहां पर इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा। इन्वर्टर्स आपके यहाँ है नहीं, अगर इन्वर्टर्स आपके यहाँ होता तो वहां पर कुछ इस तरह का ग्राफ मिलता। ठीक है, तो ये हुई हमारी करंट की बात। एक चीज मैं और कह रहा हूँ कि जब भी मैं कोई चीज बता रहा हूँ, आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। नोट्स बनाने का फायदा ये, आप वीडियो को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको बाद में कोई बर्डन ना हो, आपके पास प्रॉपर नोट्स बने रहें और एग्जाम टाइम में आपको मतलब ऐसी कोई दिक्कत ना आने पाए कि हमारे पास नोट्स नहीं है, हम कैसे पढ़ेंगे। अभी आप बहुत पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर आप भूल जाएंगे। तो एक काम आपको करना है कि आप साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए। ठीक है, जहां पर भी टाइम लग रहा है, वैसे मैं बहुत स्लो एकदम चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जहां पर भी टाइम लग रहा है वीडियो को पॉज कर दीजिए, अपना नोट्स प्रिपेयर कीजिए और जहां पर जो मैं एक्सरसाइज दे रहा हूँ उसको साथ साथ कर दीजिए। ठीक है, ओके। Now the next point is open circuit. What is open circuit? We can understand the concept by its name only. The circuit which is open. For example, we have this circuit. We have a source, that is battery, and its EMF is denoted by A. We have a load. It consists of resistance or anything. It is a load. So in simple words, it is a load. We have to feed this load through this circuit. This is the switch S and we have taken 2 points A and B across the switch. अब इसको थोड़ा समझते हैं कि जब भी सर्किट आपकी ओपन है, सर्किट आपकी ओपन है का मतलब ये देखिए, सर्किट यहां से यहां, इस कोई भी सर्किट हम चेक कैसे करेंगे, तो आप हमेशा सोर्स जो है, बैटरी जो है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को पकड़िए। तो हम जानते हैं ये वाली लाइन जो बड़ी वाली है वो पॉजिटिव टर्मिनल और जो छोटी वाली लाइन है वो निगेटिव टर्मिनल। तो जो करंट होती है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है और पूरे सर्किट में घूम करके निगेटिव टर्मिनल से बैटरी में फिर से एंटर करेगी। तो करंट यहां से चलेगी, ऐसे जाएगी। अब करंट यहां से चली, यहां से चली, जैसे यहां पर पहुंची, करंट को आगे जाने के लिए रास्ता ही नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये तो खुला हुआ है, इधर ये करंट है नहीं। तो क्या करंट इसमें फ्लो होगी? इस लोड में करंट जाएगी? अब रास्ता ही नहीं है अगर करंट के पास, तो करंट इसमें कैसे फ्लो होगी? तो यानी करंट की वैल्यू क्या होगी? 0। जब भी सर्किट ओपन होगी तो करंट की वैल्यू क्या होगी वहां पर? 0। वोल्टेज के लिए समझते हैं, ये पॉइंट, ये एक सीधा तार ही तो है, कंडक्टर। कंडक्टर में हम ये मान लेते हैं कि इसमें कोई भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा, वोल्टेज में कोई कमी नहीं आएगी। तो जो वोल्टेज, जो पोटेंशियल यहां पर होगा इस पॉइंट पर, वही इस पॉइंट ए पर होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। सिमिलरली जो पोटेंशियल इस नेगेटिव पॉइंट पर होगा वो भी डायरेक्टली कनेक्टेड है इस बी वाले से। ठीक है, इसमें जब करंट नहीं फ्लो होगी, करंट नहीं फ्लो होगी तो वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होगा। और क्योंकि हम जानते हैं ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू IR, V इज इक्वल्स टू IR। अगर I की वैल्यू 0 है, ये वोल्टेज ड्रॉप को बताता है, तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर 0 होगा, कोई भी वोल्टेज में ड्रॉप नहीं होगा। जब वोल्टेज में ड्रॉप नहीं होगा तो जितना वोल्टेज इसके क्रॉस, वही इस हमारे ए और बी पॉइंट के क्रॉस मिल जाएगा। या मैंने एक सिंपल सर्किट ली, जरूरी नहीं कि हमेशा ई ही मिले। यहाँ पर मैंने आपको सिंपल सर्किट लेके समझाया है, जब भी ऐसी कोई कंडीशन होगी तो आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू 0 होगी। क्यों? क्योंकि करंट के लिए रास्ता नहीं मिल रहा है। लेकिन वोल्टेज की वैल्यू 0 नहीं होगी अगर उसमें कोई सोर्स लगा है। तो अगर कोई सोर्स लगा है तो वो यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज सप्लाई करेगा। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से V डज नॉट इक्वल्स टू 0 अगर यहाँ पर सोर्स लगा हुआ है।
अगर सोर्स अप्लाई किया है सर्किट में लगा हुआ है तो यहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू 0 नहीं होगी। इतनी बात समझ में आई। ये पॉइंट आपको बहुत काम देने वाला है ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। तो ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू 0 होगी। अभी जैसे जैसे हम सर्किट्स को पढ़ेंगे RL, RL, RC और RLC तीनों सर्किट पढ़ेंगे तो वहां पर इस कॉन्सेप्ट की हमको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका शॉर्ट सर्किट या उसे ही हम बोलते हैं क्लोज सर्किट, जो सर्किट आपके बंद हो। तो अभी मैंने इसको ओपन सर्किट बनाया है। अब हम क्या करेंगे, इस स्विच को ला करके यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। ये स्विच हमारी आ करके यहाँ पर कनेक्ट हो गई। जैसे ही हमने इस स्विच को कनेक्ट किया, फिर से देखते हैं, अब स्विच को कनेक्ट करते ही करंट के लिए रास्ता मिल गया। करंट इस रास्ते से जाएगी, पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगी, लोड से जाएगी और नेगेटिव टर्मिनल पर फिर से एंटर कर जाएगी। तो इस बार करंट की वैल्यू 0 नहीं होगी। I does not equals to 0। और अगर ओम्स लॉ हम लगाएंगे तो इस लोड में कितनी करंट फ्लो हो रही है, V/R। मैंने यहाँ पर V लिख दिया है। ये बैटरी का टर्मिनल हमने E लिखा है, तो I की वैल्यू हो जाएगी E/R। ठीक है, तो यहाँ पर इस सर्किट में जो भी करंट होगी इसकी वैल्यू होगी E/R और वो नॉन जीरो होगी। क्यों? क्योंकि अब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन अब जरा देखते हैं कि ये जो स्विच है इसके पास जो पॉइंट्स हमने बनाए थे A और B, यहाँ पर क्या होगा। तो चूंकि A पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है इस पॉजिटिव टर्मिनल से और B पॉइंट डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो वोल्टेज में कोई सा भी ड्रॉप नहीं होगा। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पर होगा सेम पोटेंशियल यहाँ पर भी होगा। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, यानी वोल्टेज दोनों के बीच क्या होगा, 0 होगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं VAB = 0। याद रखिएगा, मैंने ये जो 0 लिखा है मैंने इस स्विच के क्रॉस लिखा है, यहाँ का वोल्टेज मैंने नहीं लिखा है। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, सर V = IR है, I 0 नहीं है, R 0 हो नहीं सकता, तो V कैसे 0 हो जाएगा। भाई सिंपल सा सवाल है। हमने कहा V = 0, बच्चे कह दिए कि नहीं सर, आपने कहा I does not equals to 0, मैंने भी कहा भाई I does not equals to 0, I तो फ्लो हो रही है। R रेजिस्टेंस यहाँ पर कुछ लोड में है ही, रेजिस्टेंस 0 हो नहीं सकता। अब रेजिस्टेंस नहीं 0 है, I नहीं 0 है, तो V कैसे 0 होगा। तो भाई ये जो V है ये कहाँ का V है, इस लोड के क्रॉस का V है। ये जो लोड हमने लगाया है यहाँ का जो वोल्टेज होगा, यहाँ का जो वोल्टेज होगा ये होगा। ठीक है, लेकिन इन दो पॉइंट के बीच ये दोनों पॉइंट सीधे कंडक्टर से कनेक्ट हैं। यहाँ पर आप अगर ओम्स लॉ लगा भी देंगे तो R की वैल्यू यहाँ पर 0 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, और अगर R की वैल्यू 0 है, I कुछ भी हो, तो V की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इतनी बात समझ में आई। तो ये रहा कॉन्सेप्ट शॉर्ट सर्किट का, जिसे हम क्लोज सर्किट भी बोल देते हैं, क्लोज स्विच भी बोल देते हैं। स्विच को हमने क्लोज कर दिया, या सर्किट सिंपल वर्ड्स में शॉर्ट सर्किट या क्लोज सर्किट। कोई डाउट किसी को? अभी तक की क्लास में मैंने आपसे क्या क्या डिस्कस किया उसको एक बार आप जो नोट्स बनाए हैं उस नोट्स को चेक कर लीजिए। कहीं पर भी कोई समस्या हो रही है आपको तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है और कहाँ आपको नहीं समझ में आ रहा है, या आपका कोई डाउट है, अलग से आप कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं विजय सर के, आप उस पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप इस लेक्चर्स को रेगुलरली देख रहे हैं तो आप उस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना नाम, अपना क्लास और अपने कॉलेज का नाम मैसेज कर दीजिए, ताकि वहां पर जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं वहां पर आपको ऐड कर दिया जाए और सीधे वहां पर आपको इन वीडियोस की लिंक्स मिल जाएगी। साथ ही जो भी टेस्ट होंगे उन्हीं ग्रुप्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप उन ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाइए। थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।